Hello students, how are you all? So today we are going to start the chapter number 5 of history, that is when the people rebel. So in this particular chapter we are going to understand the revolution of 1857. Several names have been given to this revolution of 1857. It means historicals, they have different versions related to this historical event which took place in 1857 in India against the English East India Company. So now we will understand this concept step by step, and we will cover the several things. First I will take you to the journal point of view, and then we will move towards this specific revolution of 1857. So first thing is, what is a revolution? Because when the people rebel or revolt, you are going to understand this concept. So when the people rebel, when was the date? That was, or year 1857 was the year when the Indian people decided to start a revolt against that time of powerful dominating government of the English East India Company, which by 1850s had covered a large area of India, not the entire area, you have to understand, but most of the area that came under the control of the English East India Company. In the previous chapters we have seen how this company just came for the sake of trade in India, and then it took the benefit of the instability which was prevailing in India during that period of time, and one after the another. From Bengal, they captured the Bengal, Awadh, the central part of India, defeated Marathas also, then Mysore also, South India, Punjab region also. By 1850s, more than 60% of the area of India came under this company's rule. और जो रह गए थे, they had accepted the paramountcy of English East India Company. That we have covered. Now revolution, हम क्या कह रहे हैं कि revolution is that phenomena, that upheaval, that turmoil created by the people against that existing government. तो यहां एक वर्ड मैं जोड़ देता हूं अपनी तरफ से, existing. So ये सिंपल डेफिनेशन है रेवोल्यूशन की. रेवोल्यूशन इज द डायरेक्ट एक्शन टेकन बाय द पीपल टू चेंज द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट है उसको बदलने के लिए, when the people decides to change it at any cost, and generally whatever they do, that is based on violence. ठीक है, तो this turmoil, this upheaval is completely based on violence and the sudden reaction of the people against the existing government. तो अब इस डेफिनेशन को अगर हम 1857 के रेवोल्यूशन पे अप्लाई करें तो हमें पता है कि पीपल आर, हु आर पीपल? दैट आर इंडियन पीपल, एंड अगेंस्ट हुम? द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये वो इवेंट है जिसको हम कवर करेंगे. और अभी मैंने आपको बताया हिस्टोरियंस का इसको लेकर अलग अलग व्यू पॉइंट है. पर्टिकुलरली इंडियन हिस्टोरियंस एंड द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, वो इस 1857 की रेवोल्यूशन को, 1857 रेवोल्यूशन को, इफ वी रीड आउट थ्रू द आईज ऑफ द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिश हिस्टोरियन, तो वो क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू अंडरमाइन इट. और अगर हम इसको इंडियन हिस्टोरियंस की आई पॉइंट से उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या करेंगे? इसके बारे में अच्छे से इसको एग्जैजरेट करके भी आप कह सकते हैं, या इसके बारे में विद रिस्पेक्ट दे विल ट्राई टू वैल्यू दिस इवेंट ऑफ 1857. तो ब्रिटिशर्स के लिए ये इवेंट क्या था? फॉर ब्रिटिशर्स इट वाज अ काइंड ऑफ सिपॉय म्यूटिनी. तो जहां पर भी आप ब्रिटिश हिस्टोरियंस का व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए ये सिपॉय म्यूटिनी है. तो वो क्या कर रहे हैं? इतने बड़े इवेंट को कम करके दिखा रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं. अंडरमाइन करना, किसी की वैल्यू को कम करना. तो इन द आईज ऑफ द ब्रिटिश हिस्टोरियन इट वाज जस्ट मियरली अ सिपॉय म्यूटिनी which was started by the soldiers, Indian soldiers, who were dissatisfied because of several policies of English East India Company. But for the Indian historians it was a kind of first
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो इसको क्या कहते हैं कि दिस was the first war of independence made by efforts made by the Indian people। आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम ये उनके लिए है, इंडियन हिस्टोरियंस के लिए। तो हम इन दोनों का व्यू पॉइंट भी समझेंगे और वी विल ट्राई टू इवेल्युएट बीइंग द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि एग्जैक्टली ये क्या था। तो अब हम आ जाते हैं 1857 रेवोल्यूशन से पहले किसी भी रेवोल्यूशन के लिए। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास 9th you are going to read out the two revolutions, Russian Revolution and the second one is French Revolution, very important topics in the international politics। आप उन दोनों को कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये रेवोल्यूशन आप कई बार और कई जगह पे पढ़ेंगे। तो इसको समझिए कि जब भी कोई रिवोल्ट होता है उसके पीछे, या हमने जितने भी रिवोल्ट्स पढ़े हैं उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज, फिर आप देखेंगे इकोनॉमिक कॉज, उसके बाद आप अगर नेक्स्ट कॉज की तरफ जाएंगे तो दैट वुड बी द सोशल कॉज। फिर अगर आप आगे इसको देखेंगे तो आप इसमें आपको सोशल कॉज के साथ साथ मिलिट्री कॉज भी नजर आएगा कि उस टाइम की जो मिलिट्री है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इस रिवोल्ट को लेकर। रिलीजियस कॉज भी आपको नजर आएगा, बहुत जगह पे आपको रिलीजियस कॉज भी देखने को मिलेंगे कि मे बी द पीपल दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिलीजियस अफेयर ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई दे वांट टू ब्रिंग सम चेंज इन दैट रिलीजियस अफेयर ऑल्सो। तो अब ये तो है किसी भी रेवोल्यूशन के लिए। और लास्ट में जो है एक लास्ट वन, वो हर रेवोल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इमीडिएट कॉज। ठीक है, तो ये है आपके पास 6 कॉज। फर्स्ट वन पॉलिटिकल कॉज, सेकंड वन इकोनॉमिक कॉज, थर्ड वन सोशल कॉज, फोर्थ वन मिलिट्री कॉज, फिफ्थ वन रिलीजियस कॉज एंड सिक्स्थ वन इमीडिएट कॉज। आप ये चार्ट अभी भी बना सकते हैं एंड यू कैन वेरीफाई इट इन योर नेक्स्ट क्लास, इन 9th क्लास, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। तब अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे या हम डिस्कस करेंगे आपका रशियन रेवोल्यूशन, तो आप इन पॉइंट्स को फिर अप्लाई करके देखना कि क्या ये कॉजेस भी थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के या रशियन रेवोल्यूशन के, जो कि अप्लाई होंगे 1857 की रेवोल्यूशन पे। तो आज का पॉइंट जल्दी से हम इन सारे कॉजेस को डिस्कस करते हैं अगले 2 से 3 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट्स, और उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जब 1857 रेवोल्यूशन टुक प्लेस, इट वाज डन बाय द इंडियन पीपल अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द रूल दे वर रनिंग इन इंडिया और द मिस एडमिनिस्ट्रेशन दे वर रनिंग इन इंडिया। अब उसके पीछे का हम सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज देखेंगे। तो आप इस पॉलिटिकल कॉज में क्या देखेंगे कि उस वक्त पॉलिटिकल पावर किसके हाथ से लेकर किसके हाथ में गई, तो गई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। और किससे ली गई, जो इंडियन नवाब्स और किंग्स थे, द नवाब्स एंड किंग्स ऑफ इंडिया। तो हमने पिछले चैप्टर में कवर किया है कि जो इंडियन नवाब्स, इंडियन किंग्स, क्वींस, पावर उनके हाथ से ली जाएगी, आइदर डायरेक्टली डिफीटिंग देम or the various policies adopted by the English East India Company, like the policy of हम देखेंगे पैरामाउंटेसी। सेकंड पॉलिसी वी विल कवर पैरामाउंटेसी के अलावा पॉलिसी दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। तो एक एक करके इंडियन नवाब्स और किंग से उनका किंगडम छीना जाएगा। कैसे छीना जाएगा, या तो डायरेक्टली डिफीटिंग देम थ्रू द वॉर्स और by adopting the several kinds of policies। तो उसके बाद ये I hope you understood कि Indian Nawabs and kings who were previously the greater authority, now the power had gone from their hands to English East India Company। Second one is the economic cause। तो economically the entire India and the people of Indians were exploited by the Britishers। So exploitation of everyone,
every community in India. तो वो चाहे ट्रेडर्स थे जिनका गुड सब बिकना बंद हो गया था. इंडिया विच वॉज इन द मेडिवल टाइम पीरियड नोन फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स लाइक द कॉटन एंड सिल्क एंड टेक्सटाइल एंड हैड अ ह्यूज डिमांड. अब जब ब्रिटिशर्स यहां आ गए तो उन्होंने इंडियन प्रोडक्शन को कंप्लीटली वैनिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. और पर्टिकुलरली 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई तो उन्होंने क्या सोचा कि इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दो, तभी इंडिया में उनका माल बिकेगा. तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडर्स इसमें सारे आएंगे. मैं इसमें जल्दी जल्दी लिख रहा हूं. ट्रेडर्स, दे वर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड. क्राफ्टमैन, जो क्राफ्ट पीपल थे, जो अलग अलग क्राफ्ट में इन्वॉल्व थे, वीवर थे. मान लीजिए वीवर के अलावा अगर आप ये देखेंगे एक्सपर्ट्स थे, स्पिनर्स थे, ठीक है, या कोई टैनिंग का काम कर रहा है, कोई पॉटरी का काम कर रहा है. उनका सारा उद्योग, सारा बिजनेस, क्राफ्ट पीपल, दे सॉ अ क्लियर डिक्लाइनिंग ऑफ देयर डिफरेंट ट्रेड्स. तो ये हो गया. फिर आप इसमें फार्मर्स को ले लीजिए, इसमें आप कॉमन पीपल और जो ऑफिशियल जॉब करते हैं उनको ले लीजिए. पर्टिकुलरली जब इन नवाब्स और किंग्स को हराया गया या हटाया गया सब्सिडरी अलायंस या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप से, तो आर्मी को, इंडियन आर्मी को, उनकी आर्मी को पूरी तरह डिसबैंड किया गया. तो वो सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. सो they were facing a economic crisis. India was facing the economic crisis in 18th and 19th century due to the mismanagement of English East India Company or due to the exploitation of Indian English East India Company. Social cause आप देखेंगे कि socially also not only the Britishers they were ruling India but they were telling India that they were inferior. तो इंडियंस को क्या बोला गया कि योर कल्चर, योर प्रैक्टिसेस, योर ट्रेडिशन, दे आर इंफीरियर एंड वी पीपल, वी यूरोपियन पीपल आर द सुपीरियर. तो सोशली इंडियन पीपल वर एक्सप्लॉइटेड by the English East India Company. Their social structures, reputed social structures were step by step destroyed by the company. That's why Indian people were socially also dissatisfied. Military cause में जिसको कि बेस बना के ब्रिटिश हिस्टोरियन कहते हैं कि इंडियन 1857 ऑफ रिवोल्ट इज नथिंग बट अ सिपॉय म्यूटिनी. Indian sepoys or soldiers, sepoy is a word used by the Britishers that is referred for the soldiers who were serving in the English East India Company. They were very dissatisfied with the company and its rules. कैसे? क्योंकि they were given the separate different kind of salaries. The white soldiers would be given a much higher salary, more respect as compared to the Indian soldiers for the same post. तो जो वो आज का फिनोमेना है डेमोक्रेसी का, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, उसको कंप्लीटली इग्नोर किया गया बाय द कंपनी. इंडियन सोल्जर्स वर गिवन लेस सैलरी, दे वर इंसल्टेड ऑल्सो, दे वर आस्क्ड टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. और आपको याद रखना है 18th-19th सेंचुरी most of the people were very religious in their mindset. तो जब उनको बोला गया कि आपको क्लीन शेव करना है तो कईयों को उस बात में प्रॉब्लम हुई. फिर आप इसमें एक देखेंगे 1824 में इंडियन सोल्जर्स को हु वर सर्विंग इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें बोला गया कि आपको बर्मा जाना है, म्यांमार जाना है लड़ने के लिए थ्रू द सी रूट्स. तो क्योंकि उस वक्त की रिलीजियस जो मान्यताएं थी, जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, वो ये कहते थे कि if a person is leaving his country through the sea route, तो उसका कास्ट, उसका रिलीजन जो है वो खराब हो जाएगा. तो इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू गो थ्रू द सी रूट टू बर्मा और म्यांमार. और फिर अगर मिलिट्री में आप डिसोबे करते तो आपके ऊपर जो कोर्ट मार्शल होता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है. तो उन सोल्जर्स के ऊपर वो एक्शन लिया गया. दे वर वेरी डिससेटिस्फाइड. फिर 1856 में एक एक्ट बनाया गया कि कोई भी सोल्जर वाइल सर्विंग इन द आर्मी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वुड नॉट रिफ्यूज एनी ऑर्डर ऑफ द कंपनी. तो इससे वो बहुत नाराज थे. फिर आप इसमें आगे देखेंगे वो इमीडिएट कॉज में आ जाएगा, ग्रीस कार्ट रेस, उसको हम अभी फर्दर और डिस्कस करते हैं. तो इनइक्वल ट्रीटमेंट, इनइक्वल सैलरी, racial superiority complex by the Britishers were the reasons because of which the सिपॉयज इंडियन सोल्जर्स वर नॉट सेटिस्फाइड. और फिर एक और पॉइंट आप जब इस वाले कॉज को करेंगे तो आप बताएंगे कि इंडियन
soldiers could not be promoted for higher posts, no matter how talented they were. उनकी एक पोस्ट फिक्स थी, सूबेदार, उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकते, चाहे वो कितने मर्जी टैलेंटेड हो. तो इस वजह से भी इंडियन सिपॉयज वर एंग्री विद द कंपनी. रिलीजियस कॉजेज में आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स और यूरोपियन ने क्या किया, जब इन्होंने अफ्रीका और एशिया में कैप्चर कर लिए यहाँ के लैंड मासिस को, तो इन्होंने क्या किया, अपनी मिशनरीज को भेजना शुरू किया. तो कईयों के माइंड में ये आप इसे फितूर कह लीजिए कि अपने धर्म को एक्सपेंड करना है और उसके लिए हर मेथड को अडॉप्ट करना है. तो missionaries, these Christian missionaries, they were sent to India. They told the people of India that you are following a fake religion. That's why you should convert into Christianity. तो आप देखिए क्रिश्चियनिटी आज भारत में लगभग 2% के करीब पॉपुलेशन है, 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है. तो ये क्रिश्चियनिटी कैसे आई? That came only after these European companies came to India. And when they got the power, political power, they invited these Christian missionaries who came to India and tried to convert the Indian people into Christianity. तो इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आई. लोग रिलीजन को लेकर आज भी उतने ही सेंटिमेंटल इमोशन रखते हैं, तो पास में तो और ज्यादा होंगे. दैट्स व्हाई दीज पीपल, इंडियन पीपल, नो मैटर दे बिलोंग टू विच रिलीजन, दे वर वेरी एंग्री अगेंस्ट दीज काइंड्स ऑफ रूल्स. और फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कई ऐसे नए रूल्स बनाएगी जिसको कि ये इंडियन पीपल, पर्टिकुलरली हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे थॉट दैट कि दीज पीपल आर ट्राइंग टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ इंडियन. तो इस वजह से नाराजगी जो है इंडियन लोगों की रिलीजियस मैटर को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. उसी टाइम पे 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स की तरफ से कई रिफॉर्म भी किए जाते हैं जिसको कि इंडियंस लेते हैं कि ये हमारे रिलीजन के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं. तो दिस इज द रिलीजियस कॉज. तो आप एक एक करके इन 5 कॉज को एक्सप्लेन करेंगे. एंड द लास्ट वन इज द इमीडिएट कॉज, और यहां मैं लिख रहा हूं इसको ग्रीस्ड कार्ट्रेज. तो जब हम इसे डिटेल में करेंगे तब भी देखेंगे. अब ग्रीस कार्ट्रेज क्या था? अ काइंड ऑफ न्यू राइफल विच वॉज नोन एज एनफील्ड राइफल दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1850s. और इस राइफल के अंदर जो कार्ट्रेज का, जो कारतूस का इस्तेमाल होता था, तो उसके बारे में ये रूमर फैल जाता है क्योंकि उस आपकी गन में वो, जब सपोज दिस वन इज द गन और यहां मैं इस कार्ट्रेज को इसके अंदर डाल रहा हूं बुलेट को, तो इसके ऊपर जो रैपर लगा हुआ है दैट वाज मेड ऑफ द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग. तो ये माना जा रहा था कि इसके ऊपर जो रैपर लगा हुआ है ये काउ की स्किन से बना हुआ है और पिग्स की स्किन से बना हुआ है, जो कि बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल है फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू टच. और कहते हैं कि उस कार्ट्रेज को, उस बुलेट को गन में लोड करने से पहले उसको मुंह से छीलना पड़ता है. तो रूमर स्प्रेड इन द कैंटोनमेंट्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स कि these cartridges, they were made of the fats of cows and pigs, and they thought that these Britishers or this company wanted to pollute them and made them wanted to intervene in the religious matters, made them polluted because touching the fats of cow or pig was a kind of taboo for these people, particularly Hindus and Muslims. और जैसे ही इसके बारे में पता लगता है, अब वॉज इट अ रूमर और वॉज इट अ रियलिटी? ठीक है, इसके बारे में अलग अलग व्यू पॉइंट है. कुछ इसको अफवाह बताते हैं, कुछ इसको रियलिटी मानते हैं. लेकिन इसकी वजह से जो आर्मी, जो कि बेस होती है किसी भी किंग का, किसी भी पावर का बेस उसकी आर्मी होगी, तो उस आर्मी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकतर जो आर्मी में जो सोल्जर्स हैं, फुट सोल्जर्स हैं, वो इंडियंस हैं. And when they came to know of it, all of a sudden it was a kind of spark. It was a kind of spark और चिंगारी जिसकी वजह से ये आग, ये रेवोल्यूशन जो है वो स्प्रेड हो जाता है. तो ये वो इमीडिएट कॉज है, लास्ट कॉज है जिसकी वजह से रिवोल्ट स्टार्ट होगा. और फिर हम देखेंगे कि एक एक करके सारे किंगडम्स जो है वो रिवोल्ट करते हैं. उसमें बहुत सारे नवाब्स, किंग्स, क्वींस, जमींदार्स, कॉमन पीपल, फार्मर्स, दे पार्टिसिपेटेड.
and they tried to uproot the English East India Company from India and wanted to show them the exit door. Although they failed, so I hope you understood the various causes of 1857 revolt. अब हम इसको फिर अगले वीडियो में एक एक करके सारे कॉजेस को डिस्कस करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.